मुकुल, अपने बारे में बोर्ड मेंबर को बताइए। I live in Indore. My father name is Shankarlal Singade and my mother name is Suchita Singade. I have graduated in Bachelor of Engineering in Industrial and Production Engineering from Jabalpur Engineering College. I passed my 12th class from St. Patrick's Senior Secondary School, Sohagpur, Hoshangabad, and I passed my 10th class from Prestige Public School, Indore. My hobby is playing basketball. From basketball, I learned the qualities of sportsman spirit, teamwork, coordination, perseverance, and I had in my college. My major and minor project was the conveyor belt, which is used for separating objects on the basis of their size. I completed my training from National Textile Corporation, my minor training from National Textile Corporation, Burhanpur, and my major training from Grey Iron Foundry, Jabalpur. Uh, I also have interest in playing cricket, chess, playing video games. Like to travel with my friends and family. Uh, I developed my qualities, my father and mother and friends also. ओके मुकुल, आपके फादर क्या करते हैं? So my father is a government employee. He is additional district magistrate of Khandwa. ओके मुकुल, आप जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं, Yes sir. तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोविजन हैं? So there are various provisions which are mentioned in Indian Constitution, like Article 14, right to equality, Article 15, in which there is no caste-based discrimination, Article 16 in the government employment opportunities, Article 17, right to untouchability, there is a human right, Article 21 and 20, Article 20, Article 21. There is articles for minority protection from Article 25 to Article 30. There is a commission, Article 338A for National Scheduled Tribe Commission for the protection of rights of scheduled caste. There is a Article 341 in which the president mentioned all the tribes of the Indian regions. Sorry. शेड्यूल में कोई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, Yes, उस sir. शेड्यूल में कोई है प्रोविजन? So there is a provision, Schedule 5 and Schedule 6, in which Schedule 5 it is mentioned that all the state except 4 states which are mentioned in Schedule 6, in which the protection for all the tribes in that other state, and in Schedule 6 about the Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur, Mizoram. Sorry. श्योर है? नहीं, Sorry. चलिए कोई बात नहीं। मुकुल, आपने कहा कि आर्टिकल 15 और 16 में ये कहा गया है ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, परंतु उसके बावजूद हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है और वही डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ही आपको जो है रिजर्वेशन मिला है। तो एक और हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 है। एक और 15 में भी हम कह रहे हैं कि कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 16 में भी हम कह रहे हैं नहीं होगा, किंतु फिर हम वही दूसरी और 15 में ही और 16 में ये कहते हैं कि हाँ हम कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे है? So the rights are provided for the upliftment of the people, and we are like scheduled castes, scheduled tribes are socially backward and unacceptable people in the society. For their upliftment, the government has made provisions to uplift them. So if there is a discrimination, then the person of a scheduled caste or scheduled tribe can use their rights and they can go to court if they got any discrimination in the society. And it is a positive point in the Indian Constitution that they can be a part of Indian region and they can get all the equality in among everyone. नहीं, इक्वलिटी में हमने कहा है ना कि सबके लिए जो है लॉ है इक्वल रहेगा, ठीक है, पर उसके बाद हम जो है जेंडर बेस्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? व्हाई? So if we see the history from the past, we can see that मुझे हिस्ट्री नहीं जानना है, मुझे उसके पीछे जो है लॉजिक जानना है, उसके पीछे जो तर्क है, जो आर्गुमेंट है कि हमने क्यों रिजर्वेशन दिया है, हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
और क्या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन लॉजिकल है, मुझे इतना जानना है। So means why people are discriminating Yeah. against SC. Yeah, So may I speak? yeah, definitely. You can choose any language. So if I see so जैसे मैं न्यूज़ देखता हूँ जिस तरीके से उसमें लोगों को मना किया जाता है कुछ एक्टिविटीज करने से जिससे बाकी समाज को लगता है कि वो नीचे गिर रहे हैं और दूसरी कास्ट पे लोग ऊपर जा रहे हैं, लाइक वो दब रहे हैं। तो लोग अपनी खुद की ऑनर को संभालने के लिए वो दूसरे को गिराना चाहते हैं और इस कारण से आपको नहीं लगता है मुकुल आप बहुत इलॉजिकल बात कह रहे हैं? जो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो फिलॉसफी है, जो आर्गुमेंट है, वो आप नहीं जान पा रहे हैं? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। मुकुल मुझे ऐसा लगता है आप चूंकि ट्राइब से हैं तो आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? सर भील ट्राइब। भील ट्राइब से। अच्छा, भील ट्राइब को उसका नाम भील क्यों है? सर भील शब्द जो है वो तेलुगु शब्द जो एक विल है, तेलुगु शब्द विल से वो मतलब ओरिजिनेट हुआ है और संस्कृत में भी एक शब्द है भील भीति इदंती विदंती, ठीक है, which means that जो धनुष बाण से भेद देते हैं, ठीक है, उसे हम भील कहते हैं। भील कहते हैं। ओके, इसकी कौन कौन सी जो है और इसमें जो है जातियां आती है? सर भिलाला आते हैं, बारेले आते हैं, पाटलिया आते हैं। ठीक है, कितना ही पता है आपको? द भील नामक बुक किसने लिखी है? सॉरी सर, नहीं पता आपको? अच्छा, इसमें एक जो है एक शब्द हम यूज करते हैं वो है पिथोरा। यस सर। आप जानते हैं क्या है पिथोरा? सर पिथोरा एक पेंटिंग है जो कि जो भील ट्राइब के जो लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर वाली जो दीवार होती है उस पे किसी भी रिलीजियस सेरेमनी पे ड्रॉ करते हैं। उसमें मेनली वो डॉट्स को यूज करके, वो कलरफुल डॉट्स को यूज करके किसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जैसे घोड़े का स्ट्रक्चर हो जाएगा या घर का स्ट्रक्चर या कोई भी एनिमल का स्ट्रक्चर बना देंगे। जिसमें रिसेंटली श्री भूरीबाई जी को पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला। अभी हाल ही में जो है पद्मश्री अवार्ड सरकार ने जो है घोषणा की है। मध्य प्रदेश से अभी किन्हें किन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है? अभी सब 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया। श्योर है पद्म विभूषण है वो? एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर, आई जस्ट रेड 5 पीपल गॉट द पद्म अवार्ड। नहीं, मतलब मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं? वो पद्मश्री है या पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है? आपको जानकारी इस विषय में? कोई बात नहीं। मुकुल मुझे एक चीज बताइए कि हमारे देश में दल बदल को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दल बदल जारी है, ठीक है। आपको लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो ये दल बदल को हम रोक सकें? कोई आइडिया नहीं इसके बारे में? इट्स माय ओनली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सर एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे ताकि सरकार को ज्यादा लोग छोड़ के ना जा पाए और सरकार जो रहे वो स्टेबल रहे, ठीक है। लेकिन फॉर लाइक आज के टाइम में लोग अपने पर्पस के हिसाब से पॉलिटिक्स में पार्टीज चेंज कर रहे हैं, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की खत्म हो रही है और जो टेन्योर में जितना वर्क। मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि उससे क्या प्रभाव इफेक्ट आ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई चेंजेस होने चाहिए ताकि हम और उसको मतलब मजबूत बनाए, कानून को स्ट्रांग बनाए और फिर ऐसे जो है दल बदल को रोक सकें हम? मेरे हिसाब से सर इसके लिए सर एक कॉशन मनी जरूर डिपॉजिट करनी चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट इन द इलेक्शन कमीशन। अगर कोई पार्टी से कोई पर्सन इलेक्ट होता है और जैसे फॉर एग्जांपल एमएलए या एमपी बनते हैं और उनकी एक कॉशन मनी एक डिपॉजिट होनी चाहिए। आपको नहीं लगता मुकुल इससे कि जो फिर जो गरीब व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, उसके पास अगर इतना पैसा नहीं है तो फिर तो चुनाव ही लड़ पाएगा वो? सर इसके लिए सर एक प्रोविजन दे सकते हैं कि आपको आपकी सैलरी के शुरू के स्टार्टिंग के 6 मंथ में, आपकी जब आपका जग जाएगा उसके शुरू के 6 मंथ में आपको वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जो वो अपनी सैलरी से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। वेरी गुड। मुकुल आपका जो है 10th में 60% है, 12th में 65 है और ग्रेजुएशन में 67% है। एक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कारण है कि आपका 10th में कम परसेंट बना? फिर
सर देयर इज अ चेंज इन माय पर्सनल लाइफ। सर मैं 8th क्लास तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करी है। ठीक है। और सर मुझे अपने दोस्तों के साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे दोस्तों के साथ में रह के मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पापा के बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसके कारण मैं एक ऐसे स्कूल में गया जो जिसमें मुझे केवी को छोड़ना पड़ा, और वहाँ पे मेरी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं हुई और मेरा उतना अच्छा मन नहीं लगता था, और फिर मन नहीं लगता था तो पढ़ाई में भी मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। ठीक है। आपने जो है इंजीनियरिंग किया है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, तो फिर आपने अपना करियर इसमें आगे क्यों नहीं बनाया? सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो सर एमपी में मात्र 2 ब्रांचेस हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, एक मैनिट भोपाल में और एक जेईसी जबलपुर में। ठीक है। और प्लेसमेंट लेवल यहाँ पर दोनों में बहुत ही ज्यादा लो है फॉर पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है। और इंडिया में मेनली इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही अपॉइंट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कोई भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए अलग से नहीं निकल रही है जॉब। और इसका ज्यादातर जो यूज है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसे सप्लाई चेन में हो जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन इंडिया में मेनली मैकेनिकल इंजीनियर्स ही इसका वर्क कर रहे हैं। अच्छा मुकुल, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्या रीजन है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में ही हुआ? सर बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही हुआ। उसका फर्स्ट ऑफ द रीजन है कि ब्रिटिशर्स जो है वो कॉलोनीज फॉर्म्स कर चुके थे, और कॉलोनीज फॉर्म करने के कारण उनके पास में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स आ गया था, जिसको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने अपने ही लैंड पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल से ही अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो रॉ मटेरियल तो इंडिया में भी था। सर अफ्रीका में आज भी बहुत सारा रॉ मटेरियल है, पर वहां आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। सर टेक्नोलॉजी सर। टेक्नोलॉजी, और कोई इस कारण? सर टेक्नोलॉजी, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। मुकुल मुझे एक बात और बताइए कि क्या रीजन है कि एमपी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है? यस आप देखते हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ तो थोड़े बहुत उद्योग हैं भी, किंतु पूर्वी मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। यस क्या कारण है इसके? इसमें सर मैं कहूँगा कि जो अभी रिसेंटली में जो पीतमपुर जो डेवलप हुआ है जो वेस्टर्न साइड में, वो भी अभी कंटिन्यूटी में ही है, फुली डेवलप नहीं हुआ है। और जो हमारा ईस्टर्न साइड है वो पूरा रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा कोल मिल वहां तो और जल्दी होना चाहिए फिर औद्योगिकरण। यस सर, बट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है सर वो वर्क नहीं कर रही है सर। जैसे पहले एमपी में सेल हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द पार्टीशन सर वो छत्तीसगढ़ में चले गया, तो जो एक बहुत ज्यादा बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी एमपी में वो जा चुकी है। जो सागर में जो ऑयल इंडस्ट्री, बिना ऑयल इंडस्ट्री है सर, उसमें चेंजेस नहीं ला पाए हैं, इसको अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो आज भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे, जैसे सर सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो इंदौर में है। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनमें अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है सर। द रीजन कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ना स्टेब्लिश हो पा रही है, पुरानी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो ना आगे हो पा रही है। सर मैंने एक आइडिया सोचा था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तेंदुपत्ता का करते हैं, तेंदुपत्ता प्रोडक्शन जो है दमोह में और आसपास के रीजन्स में, लेकिन हम उसके आसपास सर कोई इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश कर सकते हैं सर, जिससे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं जो उसको कलेक्ट करते हैं उनको डायरेक्ट फायदा मिल सके सर। इसमें जैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं हम इसी चीज में, जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से करें एमपी में? आप कोई ऐसे 3 मेजर्स बताइए जिससे हम औद्योगिकरण ला सकते हैं मध्य प्रदेश में। सर सबसे पहले तो सर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सेकंड सर लैंड। ठीक है, लैंड तो बहुत है हमारे यहाँ पे। सर लैंड है सर जैसे फॉर एग्जांपल सर जैसे खंडवा के पास में एक लैंड अलॉट करी गई है, बट जो लैंड है उसके पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो 2-वे लेन है, प्लस वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है। तो हमें ऐसी लैंड और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जो कि जो कंपनी है उसको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। थर्ड सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है। जिसमें जो उनके जो पेपर वर्क है वो पास जल्दी हो पाए और उन्हें इन्वेस्टमेंट और उनको बैंक लोन एंड ऑल द थिंग्स जो भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की चल रही है उनको फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू सर।
मुकुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका नाम मुकुल है, Yes. तो मुकुल शब्द का अर्थ क्या है? सर मुकुल मीन्स बर्ड, जो फ्लावर की जो बर्ड होती है, ब्लॉसम, इट्स ब्लॉसम। मुकुल जो वर्ड है वो सिमिलर टू मुकुंद वर्ड से भी है, जिनका मतलब होता है लॉर्ड कृष्णा। ओके, आप हिंदी में इसके कोई एक दो पर्यायवाची बता सकते हैं? हिंदी, इन हिंदी ओनली। मुकुल के सर, जी सर कली। जी, ओके, कोई इशू। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने पीसीएम से जो है 12 किया है, तो पीसीएम में जैसे एक फिजिक्स होता है, फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। यस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? सर, द बेसिक डिफरेंस इज द डायरेक्शन। स्केलर doesn't have the direction and vector have a direction. Like scalar have the speed and vector have the velocity. लाइक कोई एग्जांपल? So, for Vector example, quantity. if we say कि if we say the speed, distance, if we say कि I moved from Bhavakuar to Navlakha, so it's 1 kilometer distance. So I can go from anywhere. If I go from Sapna Sangita and all, then we will go all the distance. But if I see the velocity and if I cover all the Sapna Sangita and Agrasen also, then the velocity, the displacement will be only 1 kilometer. ओके, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? So escape velocity is the velocity so in which we have to pass the atmosphere of the earth. बिरजू महाराज का नाम अभी चर्चा में था। Yes, sir. ये बिरजू महाराज से क्या चर्चा है अभी वर्तमान में चल रही है? So Birju Maharaj ji recently died in last days only, and he is a famous dancer, Kathak dancer. He belongs to Lucknow, and he is also a music composer. He got 2016 Filmfare Award also for Bajirao Mastani also, and ओके, जैसे कथक का नाम आपने लिया, तो इनके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ देश में क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड एक बुक है भरत मुनि की, उस बुक का नाम आपको कोई आइडिया? sorry. ओके, कोई इशू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में, उसमें एक टर्म्स है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का क्या मतलब है? Sorry, sir. कोई आइडिया नहीं? ओके, कोई इशू नहीं। चलिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपका जन्म जो है धार जिले में हुआ है, तो धार में कोई भी 2 से 3 टूरिस्ट प्लेस आप बता सकते हैं, कोई भी 2? सर धार में सर एक डायनासोर नेशनल पार्क है, Okay. जो कि मांडू में ही सिचुएटेड है। रानी रूपमती महल है, वो भी मांडू में ही सिचुएटेड है। उसके बाद में सर ठीक है, कोई इशू। आपकी हॉबी, जैसा कि आपने बोला बास्केटबॉल है, Yes. बास्केटबॉल में एक टर्म होती है ड्रिबलिंग। Yes. व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रिबलिंग? सर ड्रिबलिंग मीन्स यू हैव टू लाइक बॉल को लेकर आपको उसको ड्रिबल करना है, लाइक टिप्स, यू हैव टू टिप इट एंड उसको टिप करके आपको फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड तक ले जाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक आपने बोला था कि बुरहानपुर में आपकी ट्रेनिंग हुई है। बुरहानपुर में कोई फेमस किला? यस सर, बुरहानपुर जो है वो मुगल रीजन्स में आता था और वहां पर शाहजहां ने किला बनवाया था। सॉरी सर, नाम नहीं पता सर। कोई इशू। अच्छा, एक और नाम आपने सर सॉरी सर, मैं बता सकता हूँ। जी, sure। असीसगढ़ का किला है, जो कि राजा हीर ने बनवाया था और राजा अकबर ने इसको जीत लिया था सर। अच्छा, असीरगढ़ का संबंध कहीं ना कहीं महाभारत से देखने को मिलता है। यस सर। तो क्या कनेक्टिविटी रहेगी महाभारत में या किसी पात्र से रिलेटेड? यस सर। there is a character named कोई इशू नहीं, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। सर कैन आई से? नो इशू। अच्छा, 2 घोटाले हमारे देश में हुए हैं बहुत बड़े, 2012 के आसपास हैं। Yes. मैं नाम बता देता हूँ, एक कोलगेट हुआ था और एक पुजी स्पेक्ट्रम हुआ था। Yes. आप बता सकते हो उस टाइम पर ये घोटाले जो हैं किसने उजागर किए थे? कौन सी संस्था जो है कहीं ना कहीं घोटालों को उजागर करने का काम करती है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, वर्तमान में यदि मैं बात करूं, कैग
कैग का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है? So Article 148 of Indian Constitution. ओके, राइट नाउ कौन है कैग के प्रेसिडेंट? Sorry, sir. मुकुल जी, आपका जन्म 1995 में हुआ है। Yes, sir. इम्पोर्टेंट इंसिडेंट? So important incidents ये हैं कि सर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द रुग्वेक राउंड 1995 में ही। माइकल जॉर्डन जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद में वापस फिर से खेलने आए थे, NBA सीजन खेलने आए थे। और 1995 में सर DVD WTO के बारे में बताएं। So वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं और उनको सुलझाते हैं। और इसमें टोटल 123 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2001 में दोहा, इसी का दोहा राउंड हुआ था। मुझे बताइए आप मुकुल, फ्री ट्रेड क्या होता है? सो फ्री ट्रेड मीन्स कि अगर कोई दो कंट्रीज अपना कोई भी मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू सेकंड कंट्री पास कर रहा है तो उसमें जो लगने वाली ड्यूटीज होती हैं उसमें एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उसमें सेकंड कंट्रीज जो रहती है वो अलाउ करती है जो फर्स्ट कंट्री है कि आप अपना जो मटेरियल है वो हमारे यहाँ भेज सकते हैं। फ्री ट्रेडिंग का कोई बेस्ट या आइडियल एग्जांपल है आपके सामने? सो फ्री ट्रेड सर हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर अमेरिका के साथ में है। हमारे मैं आपसे आइडियल एग्जांपल पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप बताइए कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो मुझे आप बता सकेंगे? सॉरी कोई जानकारी नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने पढ़ रहा था मैं पेपर, तो मैंने देखा कि जो NTPC का रिजल्ट आया है इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वायलेंटली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है उसको पढ़ना चाहिए, इस तरीके से वायलेंटली प्रोटेस्ट करना चाहिए? सर जो एग्जाम का जो फॉर्म भरा गया था वो 2019 में भरा गया था जिसकी एग्जाम जो है वो 2021 से कंडक्ट हुई थी और बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बट उनका रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाया है। गवर्नमेंट का सर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो क्लैरिफाई करे कि इस बेसिस पे उन्होंने रिजल्ट्स पास किए हैं और उनको ये भी बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिस फॉर्मूले को उन्हें यूज किया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री है सबके लिए। और स्टूडेंट्स जो हैं उनको वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। दे मस्ट बी अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू द गवर्नमेंट and the railway minister should concern it. Very good. Mukul, as you mentioned that your father is working as a additional district magistrate. Yes, sir. I'm right? Yes, sir. So I think you are socially, economically and educationally highly uplifted. Yes, है sir. ना? So why did you take the reservation category as your exam, and when you know that somebody else who is really not socially, educationally and economically afflicted can take opportunity on your place? So at the time when I was filling the form, I have this feeling that if I get passed in this exam, the people of scheduled tribe will get motivated from me. They are also motivated when your father gets selected. Yes, sir. But every time person needs new motivations. Okay. So this was my personal feeling when I was filling the form, and if a person gets selected from my seat and I go to a general category also, so it is not compulsory that the seat which I will take from general category could also be taken by other person who is also not economically supported. So it's not important that everywhere there are all benefited person. You think ethically it is right? So I don't know ethically, but according to government policy, it is right. According to government policy, it is right. I'm talking ethically. Sorry, sir. Okay, no problem. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आप किस जिले में सबसे ज़्यादा रहे और किस जिले की जानकारी आपको सबसे ज़्यादा, तो आप मुझे कौन सा जिला बताएं?
सर मैं सबसे ज़्यादा सर इंदौर जिले में रहा हूँ, क्योंकि सर मैं मेनली कहीं भी 4 ईयर से ज़्यादा नहीं। आपको एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब आप कचरा फेंकने जाते हैं, यस सर। ठीक है, तो जो कचरे वाली गाड़ी होती है उसमें कितने टाइप्स के कचरे के लिए अलग अलग बॉक्सेस बने रहते हैं? सर रिसेंटली उसमें पहले 2 बॉक्सेस हुआ करते थे, एक सूखा और एक गीला। उसके बाद में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग बनाया गया है और एक नंबर्स बताइए मुझे टोटल। टोटल सब टोटल नंबर्स याद नहीं है, अराउंड 6-7। 6 और 7? सर 7। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ कोबाल्ट 60 इन स्लज प्लांट? सॉरी। ठीक है सर। मुकुल, मान लीजिए कि आप जो है एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर हैं, ठीक है, यस और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ट्राइब्स रहती है। आपको जो है वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम दिया गया है, किंतु ट्राइब्स का उनका जो रिचुअल्स है, उनके जो कस्टम्स हैं, वो उन पर इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो वैक्सीनेशन लगाने से मना कर जाते हैं। यस तो उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगाना है। गवर्नमेंट थोड़ी कोशिश भी करती है, हेल्थ वर्कर्स प्रयास भी करते हैं, पर उनको मार पीट के वो भगा देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ये प्रॉब्लम दी गई है, गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया है कि भाई जाके वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल कीजिए। आप कैसे उन ट्राइब्स को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि ये वैक्सीनेशन लगवाना है? सर अगर मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे सबसे पहले जो भी लोकल लीडर्स हैं, जैसे वहाँ का जो भी सरपंच रहेगा, एमएलए रहेंगे, और उस पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करने वाले जो भी बड़े लीडर्स हैं या बड़े लोग हैं उस गाँव के, मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगा और मैं सबसे पहले उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप हमारे साथ चलिए और आप वहाँ के लोगों से बात करिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं उनके। आई एम एन अननोन पर्सन टू देम। और जब मैं जाऊंगा तो मैं अपनी खुद की ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब का भी फायदा, नाम की ट्राइब का फायदा उठाऊंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं जो हूँ, मैं भी एक ट्राइबल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने भी वैक्सीनेशन किया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितना इजीएस्ट टू इजीएस्ट वे में मैं उनको समझा सकता हूँ कि आपको इससे ये फायदा मिल सकता है। और मैं शायद उनको ये भी बोलूंगा कि इससे आपको कुछ जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें भागीदारी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मुकुल, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हम आपको इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं करें? कोई 2 रीज़न बताइए। सॉरी सर। हमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट ना हो इसके लिए 2 रीज़न क्या हो सकते हैं? आई डोंट हैव एनी रीजन टू। आप में कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है जिसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? सर इट्स माय पर्सनल पॉइंट कि सर मैं तो सिलेक्ट होना चाहता हूँ। नहीं, आप होना चाहते हो, दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, Yes. पर वो कर नहीं पाते हैं। कोई ऐसा रीज़न, लॉजिकल रीज़न या इलॉजिकल रीज़न कि हाँ मुझे इस कारण से मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता हूँ या मैं नहीं करूँगा आपको? सर फर्स्ट या तो सर मेरी हिंदी कम्युनिकेशन ठीक है, एंड लैंग्वेज तो कोई बार है ही नहीं आपका, मीडियम इंग्लिश हो हिंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सॉरी सर। नहीं सोच पा रहे? चलिए कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए मुकुल, यदि मान लीजिए आपको एमपी का सीएम बना दिया जाए तो आप ट्राइब्स के डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए क्या 3 कदम उठाएंगे? सर जिस तरीके से मैं भी एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ स्टेप बताइए। सर सबसे पहले सर मैं जो जितनी ट्राइब्स है ना सर, उनको इंडस्ट्रियल सर्विसेज में सॉरी सर सेकेंडरी सर्विसेज में लाना चाहता हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज एंड ऑल। बिकॉज सेकेंडरी सर्विस जो रहती है वो प्राइमरी और टर्शरी दोनों को सपोर्ट करती है। तो अगर मैं कोई एक इंडस्ट्री को फॉर्म करता हूँ तो वहां से ट्राइबल्स को जो रॉ मटेरियल्स, जो कि पूरे जो ट्राइबल रीजन्स में रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वो एक इंडस्ट्रियल पर्पज में रॉ मटेरियल आ सकते हैं। और उन्हीं ट्राइबल्स में जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं उनको सर्विस सेक्टर में भी यूज कर सकता हूँ, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है।
जिससे इकोनॉमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, मैं उनको सोशली अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं उनको, ताकि उनको जल्दी से जल्दी बेनिफिट्स मिल सके। और तीसरा सर, मैं एजुकेशन पे काम करना चाहूँगा, ताकि जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं और जो छोटे बच्चे, मेनली जो छोटे बच्चे जो बिलो 5th क्लास है, वो ज़्यादातर स्कूल आ पाए तक, क्योंकि 5th क्लास तक अगर वो स्कूल आ जाते हैं तो वो आगे अपने आप भी पढ़ लेते हैं। बट लाइक कि फैमिली स्टार्ट ही नहीं दे पाती है तो वो आगे पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है मुकुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू।